بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ پیارے ساتھیو السلام علیکم۔ آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آ جائے گی۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں، قیامت کے خوفناک نشانی۔ تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی ایک ایسی خوفناک مخلوق جو اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو ختم کر دے گی۔ اس قوم کا خروج قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، اور اس نشانی سے روئے زمین پر رہنے والے تمام تر انسانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ خوفناک مخلوق نسل انسانی کو تباہ و برباد کر دے گی اور اس روئے زمین کی ہر چیز کو کھا جائے گی۔ پیار دوستو، یہ مخلوق اتنی خطرناک ہے اور اس مخلوق کی عورتیں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ ہزاروں بچوں کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، اور اس قوم کا کوئی بھی مرد اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ 1000 بچے پیدا نہ کر لے۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی سب سے خوفناک مخلوق یاجوج ماجوج کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ مخلوق اصل میں ہے کیا یہ لوگ انسان ہیں یا کوئی جانور ہے یا کوئی درندے، اور اس مخلوق کی ابتدا اور پیدائش کیسے ہوئی۔ یاجوج ماجوج قوم کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں کتنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس قوم کے کتنے قبیلے اور کتنے گروہ ہیں، اور ہر ایک قبیلے کی شکل و صورت اور زبان کیسی ہے، اور اس خوفناک مخلوق کے قد کتنے بڑے ہیں، اور جب یہ خوفناک مخلوق قرب قیامت میں اس دنیا میں ظاہر ہوگی تو کس طرح اس دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی اور کس طرح اس دنیا سے نسل انسانی کا خاتمہ کرے گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے اس روئے زمین پر ایک ایسی خطرناک اور درندہ صفت مخلوق آباد تھی جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج یہ نسل انسانی کے 2 بڑے قبیلے ہیں جو شمالی مشرقی ایشیا میں آباد تھے۔ پیار دوستو، یاجوج ماجوج کی قوم آج سے ہزاروں سال پہلے اس روئے زمین پر ایک آزادانہ زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن اس وقت یہ قوم ایک وحشی قوم تھی جو لوگوں میں فتنہ فساد برپا کرتی اور قتل و غارت کیا کرتی۔ یہ خطرناک قوم لوگوں کی فصلوں اور اناج کو لوٹ لیتی اور ان کو زندہ کھا جاتی۔ اس دور کے لوگ اس وحشی قوم سے بہت تنگ تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، وہ مسلمان بادشاہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی اور جنہوں نے پوری روئے زمین کی سیر کی تھی، یہ بادشاہ روئے زمین کی سیر کرتے کرتے اس علاقے میں پہنچا جہاں پر یاجوج ماجوج قوم آباد تھی، اور جس علاقے میں یہ لوگ فتنہ فساد پھیلایا کرتے اور لوگوں کو قتل کر دیا کرتے۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس علاقے میں پہنچے تو اس علاقے میں آباد لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو یاجوج ماجوج قوم کے ظلم و ستم کے بارے میں بتایا اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اور اس وحشی قوم سے تمہیں چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ تو وہاں پر موجود لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا اقرار کر لیا۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ مل کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک طاقتور دیوار بنائی اور اس دیوار کے پیچھے اس وحشی قوم کو قید کر دیا جو قیامت تک اس دیوار کے پیچھے قید رہے گی۔ اس وحشی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں جب چاہے گا ظاہر فرمائے گا۔ پیار دوستو، یہ قوم دنیا کے لیے کتنی خطرناک ہے، اور جب یہ قوم قرب قیامت میں ظاہر ہوگی
तो दुनिया को किस तरह तबाह बर्बाद करेगी। इसका अंदाजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से बाखूबी लगाया जा सकता है कि हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग सुर्ख हो रहा था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाक हो गए अरब वाले उस शर की वजह से जो बहुत करीब आ चुका है। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और अंगूठा मुबारक से एक गोल दायरा बनाया और एक हल्का बनाकर इरशाद फरमाया कि आज याजूज माजूज कौम की दीवार इतनी खुल चुकी है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि याजूज और माजूज दो मर्द हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। इस कौम को याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है कि ये कौम तादाद में बहुत ज्यादा होगी और जिसामत में बहुत सख्त होगी। प्यारे दोस्तों, इस मखलूक के लोग कितने ज्यादा हैं और इस कौम की तादाद इंसानों के मुकाबले में किस कदर ज्यादा है, इसका अंदाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से लगाइए कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के 10 हिस्से किए जाएं तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और 1 हिस्सा इंसानों का होगा। इस हदीस पाक से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसानों के मुकाबले में याजूज माजूज कौम की तादाद कितनी ज्यादा है और ये लोग नस्ल इंसानी के लिए कितने खतरनाक हैं। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि याजूज माजूज कौम के गिरोह कितने हैं और हर एक गिरोह की शक्ल सूरत कैसी है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा है कि जिनके कद बहुत बड़े हैं और याजूज माजूज कौम का ये गिरोह हशरातुल अर्द यानी सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े खाता है। रिवायात में आता है कि याजूज माजूज कौम की नस्ल 1 साल में जितना बढ़ती है इतना किसी भी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा है कि जिनके सींग दुम और लंबे लंबे दांत हैं। रिवायात में आता है कि याजूज माजूज कौम के 40 गिरोह हैं और इनमें से हर एक गिरोह की खलकत और शक्ल सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती और इन 40 गिरोह में से हर एक गिरोह का बादशाह और जुबान अलग अलग है। ये लोग ज्यादातर अपना खाना पीना शिकार से करते हैं और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इनको भूख लग जाए तो ये एक दूसरे को भी खा जाते हैं। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि याजूज एक गिरोह है और माजूज 4 गिरोह हैं और इनका हर एक गिरोह 4 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस कौम का हर एक आदमी इतना ताकतवर होता है कि वो उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि वो 1000 बच्चे पैदा न कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक गिरोह ऐसा भी है जो 4-4 गज लंबा और 4-4 गज चौड़ा है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है कि जिनका कद सिर्फ 1 बालिश्त यानी 1 हाथ के बराबर है और इस गिरोह के चरिंदों जैसे पंजे और दरिंदों जैसे दांत हैं। इस गिरोह के बाल लंबे लंबे हैं जो इनको गर्मी और सर्दी से बचाते हैं और इस गिरोह के कान इतने लंबे हैं कि एक कान में सर्दी और दूसरे कान में गर्मी बसर करते हैं। और याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है। और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई फर्द मर जाए तो इस कौम के लोग उसको खा जाते हैं। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज कौम जिस दीवार के पीछे कैद है, जब कुर्बे क़यामत का वक्त करीब आएगा और जब अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को आजाद करना चाहेगा तो ये कौम उस दीवार को तोड़ देगी और इस दुनिया में जाहिर हो जाएगी। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याजूज माजूज कौम जिस दीवार के पीछे कैद है, ये लोग उस दीवार को रोजाना खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो दीवार खुलने के करीब आ जाती है तो उस कौम का सरदार अपने लोगों से कहता है कि आओ अब वापस चले, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दीवार को वैसा ही कर देता है जैसे वो दीवार पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम की मुद्दत पूरी हो जाएगी और जब अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को दुनिया पर जाहिर करने का इरादा फरमाएगा और क़यामत की इस निशानी के ज़हूर का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त याजूज माजूज कौम का सरदार अपनी कौम से कहेगा कि वापस लौटो, कल इंशाअल्लाह इस दीवार को हम तोड़ेंगे। इस तरह इस कौम का सरदार अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ मुंसलिक करेगा। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल जब ये लोग इस दीवार को तोड़ने के लिए वापस आएंगे तो इस दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। फिर ये कौम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से
उस दीवार को तोड़ देगी और लोगों पर निकल आएगी। जब ये लोग इस दुनिया के अंदर जाहिर होंगे तो रूए जमीन का सारा पानी पी जाएंगे और इस रूए जमीन में कत्ले आम करेंगे और लोगों को खा जाएंगे। उस वक्त ये लोग रूए जमीन पर मौजूद हर एक चीज को खा जाएंगे और हर एक चीज को मार डालेंगे। उस वक्त कोई भी इंसान जिंदा बाकी ना रहेगा सिवाय उन लोगों के जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक महफूज मकाम पर मौजूद होंगे। हदीस पाक में आता है कि ये लोग तादाद में इतने ज्यादा होंगे कि जब इस कौम की पहली जमात बहर तिब्रिया के करीब से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी, और जब इसकी दूसरी जमात उसी मकाम पर आएगी तो ये लोग वहाँ पर रुककर एक दूसरे से पूछेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। प्यारे दोस्तों, जब ये मखलूक रूए जमीन पर रहने वाली हर एक चीज को खत्म कर देगी और रूए जमीन पर किसी भी चीज का नामो निशान बाकी ना रहेगा, तो उस वक्त ये लोग एक दूसरे से कहेंगे कि हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया और जमीन वालों पर गालिब आ गए, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करते हैं। ये कहते हुए ये लोग अपने तीरों को आसमानों की तरफ चलाएंगे और वो तीर खून आलूदा होकर वापस लौटेंगे। इस तरह उन खून आलूदा तीरों को देखकर ये कौम बहुत खुश होगी और ये लोग समझेंगे कि हमने जमीन वालों को भी कत्ल कर दिया और आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। और उधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा एक पहाड़ी पर मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज कौम की गर्दनों में एक खास किस्म के कीड़े पैदा फरमा देगा, जिसकी वजह से याजूज माजूज की कौम पूरी की पूरी हलाक हो जाएगी। उस वक्त पूरी रूए जमीन याजूज माजूज कौम की लाशों से भर जाएगी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे तशरीफ लाएंगे तो जमीन इस कदर लाशों से भरी होगी कि पांव रखने की जगह ना होगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा दोबारा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक खास किस्म के परिंदे भेजेगा जो याजूज माजूज कौम की लाशों को उठाकर वहाँ पर फेंक आएंगे जहाँ अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा, और इस तरह क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी मुकम्मल होगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इस रूए जमीन पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और इस रूए जमीन को दोबारा से हमवार कर देगा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज कौम का खात्मा फरमाएगा और इसके बाद क़यामत की दूसरी निशानियां पूरी होंगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारी वीडियो आप लोग आखिर तक लाजमी देखिए। याजूज और मजूज के बारे में है, बहुत ज़बरदस्त वाक़या है। आप लोग आखिर तक लाजमी देखिए, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह।